Hello everyone. Welcome to the channel Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 7th Science chapter 4 Heat. In chapter 3 you learn that woolen clothes are made from animal fibers. ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक में कि वो जो वुलन क्लोथ्स हैं वो एनिमल के फाइबर्स से बनते हैं जैसे कि वूल, और कॉटन के जो क्लोथ्स हैं वो प्लांट फाइबर्स से बनते हैं, कॉटन जो हमें कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होते हैं. Plant fibers, cotton clothes, and woolen clothes from the animal fibers from the wool of the sheep. We wear woolen clothes during winters में woolen clothes पहनते हैं and when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. हमें warm रखते हैं woolen clothes. और हम कॉटन के जो क्लोथ्स हैं वो हॉट सीजन में, समर सीजन में वेयर करना प्रेफर करते हैं, लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. These give us a feeling of coolness. So you might have wondered why particular types of clothes. हम particular type of clothes ही क्यों पहनते हैं particular season में? तो इसका कुछ reason होगा. This we will study further in this chapter. In winter you feel cold inside the house. आपको घर के अंदर भी ठंड लगती है, और जब आप sun में आते हैं, outside in the sun you feel warm. But summer में आप even घर के अंदर होते हैं तो भी आपको you feel hot even inside your house. Then how do you know whether an object is hot or cold? तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? How do we find out how hot or cold an object is? So let's study in this chapter how we will find out. Now, hot and the cold object. A table is given ice cream. You can easily touch it and you can tell. A spoon in a teacup, that would be hot. Fruit juice, handle of the frying pan, that will be hot. तो आप easily बता सकते हैं which objects will be hot and which will be the cool. Some of them are hot and some of the objects are cool. Tea is hot, ice is cold. Do not touch objects which are too hot. बहुत ज़्यादा objects को हमें touch नहीं करना चाहिए. And be careful while handling. जब आप गैस पे work कर रहे हो, candle flame के साथ work कर रहे हो, तो we should be very careful. We see that some objects are cold and while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some objects are colder than others. कुछ objects warm होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा hot होते हैं, कुछ cold होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा they are colder than the others. So how you will decide? So one activity is given. You have to take 3 tumblers, 3 containers. Container A, you will put cold water. In container B, put hot water. And you have to put your hand in cold water. You will feel cold. In hot water, if you will put, then you can identify it as a hot water, but make sure water is not so hot that you burn your hand. बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है कि you burn your hand. Now put both the hands in the warm water. In the C container you will take the warm water, mix both the water A and B. Then what do both the hands get the same feeling? This you have to observe through this experiment. Now, a reliable measure of the hotness of an object is called temperature. Temperature से हम पता करते हैं कि measure कि object कितना hot है, and the temperature is measured by a device which is called thermometer. Thermometer is a device जिससे हम की temperature को measure करते हैं. तो measuring temperature, अगर हमें हमारी body का temperature measure करना है तो हम use करेंगे clinical thermometer. The thermometer which measures our body temperature is called clinical thermometer. Clinical thermometer को आप हाथ में लेंगे, इस तरह का होता है ये clinical thermometer. यहाँ पे आगे इस पे mercury fill होती है और यहाँ पे ये स्केल बना हुआ होता है. इस तरह से स्केल टेम्परेचर 36 डिग्री, 37 डिग्री. नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है. तो जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को पुट करेंगे, प्लेस करेंगे टंग के नीचे, और ये मरकरी जो होता है ये इसमें राइज होता है, यहाँ तक 37 तक आ रहा है, यहाँ तक मरकरी शो किया गया है. दिस इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक दिस. क्लिनिकल थर्मामीटर में एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है. ये ग्लास ट्यूब है लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म. इट हैज़ बल्ब, इस एंड पे बल्ब है, बल्ब के अंदर मर्करी फिल हुआ हुआ है. इस बल्ब में शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन. और इसका जो स्केल यूज़ होता है दैट इज़ डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस में इसका स्केल है सेल्सियस स्केल.
तो बूजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन द फिगर 4.2 वी शुड रीड। तो पहेली ने बताया कि इंडिया में सेल्सियस स्केल अडॉप्टेड है और द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। तो दो तरह से मेजर होता है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर होता है और फ़ारेनहाइट में। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर। So this is important. A clinical thermometer reads the temperature between 35 degree Celsius to 42 degree Celsius के बीच का टेम्परेचर ये रीड कर सकता है। नाउ रीडिंग अ थर्मामीटर, आप किस तरह से रीडिंग लेंगे थर्मामीटर पे? इसमें छोटी छोटी डिविजन्स होती हैं स्केल्स पे। थर्मामीटर को पहले वॉश किया जाएगा। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले वॉश करना चाहिए, प्रेफरेबली विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। उसमें मर्करी लेवल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। Read the thermometer keeping the level of the mercury along the line of the sight। इस तरह से चेक करना चाहिए जैसे इस फिगर में दिखाया गया, आइज़ के सामने रख के मर्करी का लेवल चेक करना चाहिए। Now handle the thermometer with care. If it hits against some hard object, it can break. It can break and don't hold the thermometer by the bulb. रीडिंग लेते टाइम उसके बल्ब से उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, उधर से नहीं पकड़ना चाहिए। 1 डिग्री उसमें मेजर उसमें मार्क किया हुआ होता है 1 डिग्री, और उस 1 डिग्री में भी 5 डिविजन्स होती हैं और एक डिवीजन होता है 0.2 डिग्री सेल्सियस का। आफ्टर दैट, आफ्टर टेकिंग द टेम्परेचर यू हैव टू वॉश द थर्मामीटर। ये हमने अभी रीड करा है, पहले वॉश करना है, फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसे वॉश करना है, फिर उसे कुछ जर्क्स देने, जर्क्स दे के मरकरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाने चाहिए। फिर बल्ब को इसका थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको अपनी टंग के नीचे प्लेस करना है 1 मिनट तक प्लेस रख के, और फिर उसमें टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है कि कितना टेम्परेचर है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद अ यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस एंड नोट द टेम्परेचर स्टेटेड विद इट्स यूनिट 37 डिग्री सेल्सियस। हम इसको 37 नहीं लिखेंगे, साथ में इसकी यूनिट भी लिखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली ने अपना बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं था, तो ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। नॉर्मल ये एवरेज 37 डिग्री होता है, किसी का 36 थोड़ा सा कम भी हो सकता है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। Now, is the body temperature of every person is 37 degree Celsius? It could be slightly higher or it could be slightly lower हो सकता है, बट एवरेज जो हम लेते हैं वो 37 डिग्री लेते हैं। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर लेने में भी यूज़ कर रहे हैं, नहीं। ये सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर शो कर सकता है, 35 to 42। सो दिस इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। अगर हाई टेम्परेचर पे आप इसको रख देंगे, टेम्परेचर लेने लगेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा थर्मामीटर। So do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body। के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। एंड ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सन या फायर के पास नहीं रखना चाहिए, तो ये टूट सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर फिगर 4.4 में दिया हुआ है थर्मामीटर। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। ये फिगर है इसका लेबोरेटरी थर्मामीटर का, दिस फिगर 4.4। Now different type of thermometers are used for different purposes. The maximum and the minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by the thermometer called the maximum और minimum thermometer से ये measure किया जाता है। Now laboratory thermometer, look at it carefully and note the highest and the lowest range। तो इसकी highest और जो lowest range है वो -10 डिग्री सेल्सियस लोवेस्ट रेंज है और हाईएस्ट रेंज 110 डिग्री सेल्सियस की। तो आप इसको जब भी यूज़ करेंगे तो इससे बॉइलिंग वाटर का आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। टेक सम टैप वाटर, एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर, डिप द थर्मामीटर। उसको वाटर में डिप करना है और उसका जो बल्ब होता है, ये वाला पार्ट जो नीचे का टिप का पार्ट है, ये बल्ब है। ये बल्ब वाटर में इमर्स रहना चाहिए जिसका टेम्परेचर लेना है, बट ये नीचे टच नहीं करना चाहिए, कंटेनर को नीचे जाके टच नहीं करना चाहिए, बस वाटर में इमर्स रहना चाहिए। उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी का मूवमेंट ऑब्जर्व कीजिए इन द थर्मामीटर। वेट टिल द मरकरी थ्रेड एक जगह आके रुक नहीं जाता तब तक इसका टेम्परेचर, जब तक ये स्टेबल नहीं होता। अब इसकी रीडिंग नोट करनी है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम।
इट इज़ शोन इन फिगर 4.5। इसको इस तरह से इसको इमर्स करना है। 4.5 में बताया गया है बीकर के अंदर वाटर लिया और इसको क्लिनिकल थर्मामीटर उसको डिप किया, बट इसको नीचे सरफेस से बॉटम से टच नहीं करना है, वाटर में इमर्स करना है क्योंकि वाटर का टेम्परेचर हमें चेक करना है। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स? सो डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। नाउ कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। सबको ऐसे मेजर करना है, टेम्परेचर में वेरिएशंस आ सकते हैं। Now next is the activity 4.5. Take some hot water in a beaker or a mug. Hot water लेना है, उसमें थर्मामीटर को डिप करना है। Wait till the mercury thread becomes steady. जब तक ये एक जगह पे आके रुक नहीं जाता तब उसको आपको नोट करना है टेम्परेचर को। जब तक ये राइज होता जाता है फिर थोड़ी देर ये एक टेम्परेचर पे आके स्टेबल हो जाता है मर्करी लेवल, तो आपको वो वाला टेम्परेचर नोट करना है। केयरफुली यू हैव टू नोट डाउन द टेम्परेचर। डू यू नोटिस दैट एज जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे वाटर से तो थर्मामीटर का जो लेवल है, मरकरी का जो लेवल है, दैट बिगिन्स टू फॉल, वो वापस से नीचे आने लग जाता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मामीटर इज़ इन वाटर। तो टेम्परेचर हम तभी तक चेक कर सकते हैं जब तक ये वाटर के अंदर थर्मामीटर प्लेस्ड है। बाहर निकालते ही टेम्परेचर कम हो जाता है। सो यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर से लेते थे, हमारे माउथ से बाहर निकालते थे, तो जो मर्करी की रीडिंग थी वो चेंज नहीं होती थी, वो उतनी की उतनी रहती थी जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर होता था बाहर निकालने पे भी, माउथ से बाहर निकालने पे भी। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़, तो हम लेबॉरेटरी थर्मामीटर यूज़ नहीं कर सकते हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। बट इसका क्या रीज़न है कि मर्करी why the mercury does not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? से बाहर निकालने पे वो लेवल क्यों नहीं गिरता मर्करी? क्योंकि इसके अंदर एक किंक होता है। सी डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? बल्ब के पास एक किंक होता है यहाँ पे। ये जो बल्ब है, दिस इज बल्ब, ये बल्ब में किंक प्रेजेंट होता है इसके पास में। तो इसका किंक का यूज़ क्या होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो मर्करी का लेवल अपने आप नीचे नहीं आ सकता। जब हम इस थर्मामीटर को जर्क देंगे, थोड़ा सा इसको झटका देके ऐसे करेंगे, तभी वो मर्करी का लेवल नीचे आएगा। तो आप सब लोग ये सब नोटिस भी किया होगा, जब भी आप लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं अपनी बॉडी का, तो हल्का सा एक जर्क देते हैं जिससे वो लेवल नीचे आ जाए, फिर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। बट नाउअडेज डिजिटल थर्मामीटर्स यूज़ किए जाते हैं मोस्टली। देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी थर्मामीटर्स, क्योंकि मर्करी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, इट इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। अगर थर्मामीटर बाई चांस ब्रेक हो जाता है, अगर मुंह में ब्रेक हो जाता है या बाहर भी ब्रेक हो जाता है, तो उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मर्करी इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस। तो नाउ दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी, जिनमें मर्करी का यूज़ नहीं किया जाता। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, इसमें हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे हीट कंडक्शन के, हीट को ट्रांसफ़र करने के। फर्स्ट मेथड है कंडक्शन, सेकेंड मेथड होगा कन्वेक्शन और थर्ड मेथड होगा रेडिएशन। तो ये 3 मेथड्स हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। जब गैस पे फ्राइंग पैन रखा जाता है तो वो गर्म हो जाता है क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम से वो यूटेंसिल तक हीट पहुँचती है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर, जब आप फायर से उसे हटा के रख देते हैं साइड में, तो धीरे धीरे वो अपने आप कूल डाउन हो जाता है। अब ये कैसे कूल डाउन हो जाता है? क्योंकि जो पैन की हीट है वो उसके आसपास की सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट एनर्जी सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेस दैट द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। किसी भी हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो होती है, from hot body to cold body. In all the cases, heat flows from hot body to cold body. How does heat flow? Now this we have to find out. You have to take this activity 4.6. इसमें आप 2 bricks लेंगे। bricks के बीच में हमें एक rod लगानी है। Take a rod या फिर flat metal strip लेनी है, एल्यूमिनियम की या फिर आयरन की, क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फिर आप इसमें थोड़ी थोड़ी जगह पे वैक्स
के पीसेस प्लेस करने, ये वैक्स, यहाँ पे वैक्स लगा हुआ है, और एक साइड में आप कैंडल लगा देंगे, यहाँ पे कैंडल को बर्न करेंगे। जैसे यहाँ से फ्लेम आएगी तो यहाँ पे हीट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे हीट इस रॉड से ट्रांसफ़र होगी तो ये जो वैक्स इस पे लगी हुई है ये मेल्ट होकर नीचे गिरने लग जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी वैक्स कहाँ से गिरेगी? सबसे पहले यहाँ से गिरेगी जो फ्लेम के पास में, क्योंकि सबसे पहले हीट यहाँ पहुँचेगी और धीरे धीरे करते हुए आगे पहुँचते जाएगी हीट, तो इससे पूरी वैक्स मेल्ट होती हुई गिर जाएगी। Now what happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which piece will fall first? This one, which is near the flame, it will fall first. Do you think that heat is transferred from end nearest to the flame to the other end? Flame के पास का जो end है, यहाँ से heat transfer होते हुए इस last के end तक पहुँचेगी। So इस process को बोलते हैं conduction. The process by which the heat is transferred from hotter end to the colder end. ये वाला hotter end है और ये कोल्डर एंड है इस रॉड का, ये कोल्डर एंड हो गया और ये फ्लेम के पास वाला हॉटर एंड। तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। और ये जनरली कंडक्शन सॉलिड्स में होता है। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन? एंड जनरली इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। मेटालिक पैन्स का भी यही एग्जांपल है। कुकिंग के टाइम पे जो मेटालिक पैन्स यूज़ करते हैं उन पे प्लास्टिक या वुडन हैंडल्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जो हॉटर पार्ट है पैन का उससे कोल्डर पार्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए अगर हम उस पार्ट से उसको लिफ्ट करेंगे तो वो गर्म लगेगा, इसलिए वहाँ पे प्लास्टिक या वुडन हैंडल लगाया जाता है, बिकॉज इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम उसे आराम से उठा सकें। नाउ एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। थोड़ा सा वाटर हीट करना है और उसमें ये सब प्लेस कर देने हैं आपको। ये आपके जो पेंसिल्स एंड डिवाइडर, स्केल्स, ये सब चीज़ें आप इसमें प्लेस कर देंगे बीकर में डाल के और इस वाटर को हीट करने के लिए रखेंगे। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, स्टील स्पून ये आपको गर्म लगेगी, वुड आपको गर्म नहीं लगेगी क्योंकि इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। Plastic is also a bad conductor of heat. तो materials which allow heat to pass through them easily, they are called conductors of heat. जिनमें से heat पास हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे नीचे फ्लेम है, फ्लेम जल रही है और ये वाटर गर्म हो रहा है, तो वाटर गर्म होने के ये जो मेटल है, जो स्पून है, ये मेटल की है, तो इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ से हीट होते हुए यहाँ तक भी पहुँच जाएगी, तो इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट। ये अपने में से हीट को पास होने देता है, तो दीज आर कॉल्ड द कंडक्टर्स ऑफ द हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, दीज आर द conductors. You have to learn the definitions and examples. Or the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat. जैसे wood हो गई, wood is a poor conductor of heat. प्लास्टिक का स्केल ये भी गर्म नहीं होगा क्योंकि हीट इसमें पास नहीं कर पाएगी। तो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जो हीट को कंडक्ट करते हैं, अपने में से पास होने देते हैं, गर्म हो जाते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं। और इंसुलेटर्स अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते, पास नहीं होने देते और वो गर्म नहीं होते हैं। अगर हम उन्हें टच करेंगे तो भी वो गर्म नहीं होंगे। सो दे आर इंसुलेटर्स। द वाटर एंड एयर, दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और एयर ये दोनों हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस? फिर एयर और वाटर में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? नाउ लेट अस फाइंड आउट विद दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी 4.8, यू हैव टू टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल देन टेक अ बीकर। अब इसमें 2/3 वाटर फिल करना है, फिर उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखना है और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट You can heat it by placing a candle below it. ये इस तरह का सेटअप होगा। इस तरह से आप एक बीकर लेंगे और ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे फ्लेम लगी हुई, ये फ्लेम, यहाँ से फ्लेम आएगी और इसके अंदर आपको वाटर फिल करना है। Now place a crystal of potassium permanganate. इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल ऐड करना है। पोटेशियम परमैंगनेट ये कलर्ड क्रिस्टल होता है, तो ये इसमें प्लेस करेंगे और फ्लेम के पास प्लेस करना है जहाँ पे बॉटम में फ्लेम आ रही है। तो जैसे जैसे ये हीट होगा, व्हेन द वाटर इज़ हीटेड, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स
हॉट, तो फ्लेम के पास में जो वाटर होगा वो सबसे पहले गर्म होगा, और जो गर्म पानी होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और जो कोल्ड वाटर होगा वो साइड से नीचे की तरफ आएगा. दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस. नाउ दिस मेथड इज कन्वेक्शन वाटर. ये जो हमने अभी पढ़ा है, बीकर में वाटर है, वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, ऊपर यहाँ से जो वाटर हीट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो राइज होगा, और ये साइड का जो कोल्ड वाटर है ये नीचे आएगा, फिर ये यहाँ से आके फ्लेम के पास में गर्म होगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा. ऐसे करते हुए जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आता जाएगा, ऊपर का वाटर हॉट होके, और फिर लाइट होके ये ऊपर जाता जाएगा. The water from the sides moves down and this process continues till the whole water gets heated. जब तक पूरा वाटर गर्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ये लिक्विड्स में होता है इन वाटर. देन हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर. एयर में हीट कैसे ट्रैवल करती है. इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो. द एयर राइजेज नियर द हीट सोर्स, गेट्स हॉट एंड राइजेज. एयर जो हीट सोर्स के पास होती है, जो जहाँ पे जैसे फ्लेम है तो वहाँ पे पास में जो हीट सोर्स है वहाँ से वो राइज हो जाती है, गर्म होके ऊपर की तरफ जाती है. एयर भी गर्म होके ऊपर की तरफ जाती है, और जो एयर आसपास की जो एयर होती है वो उसकी जगह ले लेती है और वो उधर नीचे आ जाती है. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. नाउ नेक्स्ट इज द एक्टिविटी 4.9. लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम. और एक हैंड उसके ऊपर रखना है और एक हैंड साइड में रखना है. क्या दोनों हैंड आप सेम फील करेंगे? किस में आपको ज़्यादा गर्म लगेगा? एक आपने फ्लेम के पास रखा और एक ऊपर रखा. जो ऊपर रखा उस पर आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ से जो एयर, यहाँ पे जो एयर फ्लेम के जो बिल्कुल ऊपर है, यहाँ से एयर गर्म होके यहाँ पे ऊपर जाएगी, और साइड में से यहाँ से जो एयर, ठंडी एयर होगी पास में से, वो फिर यहाँ पे इसकी जगह ले लेगी. फिर ये यहाँ पे इस फ्लेम के पास में आके एयर गर्म हो जाएगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी. नाउ नोटिस that towards the top the air gets heated by convection. Convection से गर्म हो रही है air. Therefore the hand above the flame feels hot, and on the sides there is no convection. वहाँ convection नहीं है. The air does not feel as hot as on the top. साइड की एयर पे ज़्यादा गर्म नहीं होगी, ऊपर वाली कन्वेक्शन से गर्म हो जाएगी. द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है वहाँ पे. तो वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में जो सी के पास होते हैं, वहाँ पे डे टाइम में लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है. जो लैंड होता है वो वाटर के कंपेयर में ज़्यादा और जल्दी गर्म होता है, फास्टर देन द वाटर. तो एयर जो लैंड के ऊपर है, सन से जो सनलाइट आई उससे लैंड गर्म हुआ. गर्म के लैंड के बिल्कुल पास में जो एयर है वो भी एयर भी गर्म हो जाएगी, और वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी. दैट बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, ऊपर की तरफ जाएगी. तो जो कूलर एयर है, जो सी के पास वाटर के ऊपर जो ठंडी हवा है, वो लैंड की तरफ आएगी, तभी तो वहाँ पे ठंडी हवा चलती है. तो वार्म एयर जो लैंड से है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और वार्म एयर जो सी से जो ठंडी एयर है वो लैंड की तरफ आ रही है. तो दिस इज़ कॉल्ड अ सी ब्रीज. टू रिसीव द कूलर ब्रीज, ठंडी हवा लेने के लिए जो विंडोज़ होती है कोस्टल एरियाज़ में, वो सी के फेसिंग बनाई जाती है, सी की तरफ बनाई जाती है. एट नाइट एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, नाइट में रिवर्स हो जाता है. वाटर क्या है, कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. लैंड जल्दी ठंडा होता है रात के टाइम पे, और वाटर को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो जो कूल एयर है वो लैंड से सी की तरफ जाती है. दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज. सी दिस इन फिगर. डे टाइम में इस तरफ आती है सी ब्रीज, सी से, क्योंकि यहाँ लैंड के ऊपर की जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर चली गई. अब यहाँ पे खाली जगह हो गई एयर की, तो यहाँ की जो ठंडी एयर है, जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है, वो नीचे की तरफ होती है, और जो लाइटर एयर होती है वो ऊपर चली जाती है. तो ये लैंड ब्रीज, ये सी ब्रीज इधर आएगी. और नाइट टाइम पे क्या होगा, नाइट टाइम पे वाटर गर्म होगा कंपेयर टू लैंड, लैंड ठंडी हो जाएगी. तो लैंड की तरफ से जो ये ब्रीज है ये इधर सी की तरफ जाएगी, ये रिवर्स हो जाता है.
Now when we come out in the sun we feel warm. हमें warm feel होता है जब हम sun में जाते हैं obviously है. How does the heat from the sun reach us? फिर sun से ये heat हमारे तक पहुँचती कैसे है? Conduction से पहुँचती है, convection से पहुँचती है. Conduction और convection से heat transfer करने में medium चाहिए होता है, solid medium या liquid medium. बट हमें पता है कि जो स्पेस है अर्थ और सन के बीच में जो स्पेस है वहाँ कोई एयर नहीं है, दैट इज़ अ वैक्यूम. वो वैक्यूम है, वहाँ कोई एयर प्रेजेंट नहीं है. तो वहाँ कंडक्शन और कन्वेक्शन से तो फिर सनलाइट की हीट आ नहीं सकती अर्थ पे. तो अर्थ तक कैसे पहुँचती है? सन की जो हीट है वो अर्थ पे रेडिएशन प्रोसेस से पहुँचती है. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. रेडिएशन ट्रांसफ़र में किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. कोई सॉलिड, गैस, एयर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट. अगर मीडियम प्रेजेंट है या नहीं है तो दोनों में रेडिएशन पॉसिबल है. इफ़ वी सिट इन फ्रंट ऑफ द रूम हीटर, अगर आप रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. तो आपको जो हीट मिलती है वो रेडिएशन प्रोसेस से मिलती है. अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम. फ्लेम से दूर एक गर्म कोई बर्तन रखा हुआ है, कोई कंटेनर रखा हुआ है. फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन. एक पैन को गर्म किया, गैस पे रखा, फ्लेम पे उसे गर्म किया, अब उसे उतार के साइड में रख दिया. साइड में रख दिया, वो धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो जाएगा. कैसे ठंडा हो जाएगा? क्योंकि उसकी जो हीट है वो सराउंडिंग्स में एयर में जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. अ बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग. हमारी बॉडी में से हीट निकलती है सराउंडिंग्स and receives heat from it by radiation. All hot bodies radiate heat. जितनी भी hot bodies हैं उनमें से heat बाहर निकलती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि heat energy travels from hot object to cold object, higher temperature to lower temperature. When this heat falls on some object, a part of it is reflected and part it is absorbed and a part may be radiated. सारी हॉट बॉडीज़ हीट उनसे बाहर निकलती है. तो कुछ पार्ट जो ऑब्जेक्ट हीट है वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी हो सकता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हो सकता है उसके अंदर से भी पास. जैसे कोई एक कंटेनर है, एक कंटेनर पे हीट है, हीट आ रही है यहाँ से, हीट एनर्जी, तो ये हो सकता है इसके अंदर से ट्रांसमिट होके अंदर जो जैसे वाटर पड़ा है तो इस वाटर को गर्म कर दे तो ट्रांसमिट हो गई. कुछ हो सकता है रेडिएट, इस पर ऑब्जेक्ट गिरे तो वापस रिफ्लेक्ट होकर भी हीट चली जाए, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए. और कुछ हो सकता है वो एब्जॉर्ब भी कर ले, कंटेनर खुद एब्जॉर्ब भी कर ले. तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल है. द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट. अगर हीट एब्जॉर्ब करी है तो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा. वाई आर यू एडवाइज टू टेक अ अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन? Kinds of clothes we wear in summer or winter. You know that in summer we prefer light colored clothes. Summer में हम light colored clothes पहनते हैं और winter में हम dark colored clothes पहनते हैं, क्योंकि light color के जो clothes होते हैं वो heat को radiate कर देते हैं और जो dark colored के clothes होते हैं वो absorb करते हैं. Summers में हमें heat नहीं चाहिए होती है तो green cotton के जो white clothes होते हैं वो बाहर वापस से radiate कर देते हैं और जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं विंटर्स में वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमें हीट चाहिए होती है. एक्टिविटी 4.10. 2 आइडेंटिकल कैंस लेने, पेंट करना है. एक को बाहर ब्लैक कलर का पेंट करना है और दूसरे को वाइट कलर का पेंट करना है. अब उनमें बराबर वाटर डालना है और उनको सन में रख देना है फॉर 1 आवर. मिड डे सन अराउंड 12 o'clock नून टाइम पे वी हैव टू कीप इट इन द सन. नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस. Do you find any difference in the temperature? These are the two cans. One is painted black and one is painted white. In which can is the water warmer? किस में ज़्यादा warmer होगा? इस black वाले में ज़्यादा warm होगा water, क्योंकि जो black color है वो ज़्यादा heat energy absorb करता है और जो white color है वो heat energy को radiate करता है. वो इतनी ज़्यादा absorb नहीं करेगा, वो radiate भी करेगा साथ में. You can feel the difference by touching it. We often use electricity fuels like coal, wood to keep our houses cool or warm. Is it possible to construct buildings that are not affected much by the heat and cold outside? So this can be done by constructing outer walls of the buildings. बाहर outer walls बना देते हैं तो उससे क्या होता है, लेयर में
एयर ट्रैप हो जाती है, एंड एयर वी नो इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो वन वे ऑफ डूइंग इज़ टू यूज़ द हॉलो ब्रिक्स, या फिर हॉलो ब्रिक्स यूज़ की जाती है विच आर अवेलेबल दीज डेज. तो हॉलो ब्रिक्स में एयर ट्रैप हो जाती है और वो एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है. सो इन समर द डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर. तो डार्क सरफेस क्या करता है, डार्क सरफेस एक्टिविटी 4.11 फिल एक्टिविटी 4.10 में वापस आप 2 कैंस लेंगे, वही एक वाइट जिसका सरफेस वाइट है और एक जिसका सरफेस ब्लैक है, विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर. 60 डिग्री सेल्सियस सेम टेम्परेचर होना चाहिए दोनों में. अब इन कैंस को आप रूम में छाया में रख देंगे. अब नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स. वाटर का टेम्परेचर चेक करेंगे. डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट में फॉल करेगा. डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कम्फर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स. क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा कम किसका होगा, ब्लैक वाला जो इसका कम टेम्परेचर इतना कम नहीं होगा, वो ज़्यादा रेडिएट नहीं करेगा हीट. जिसका वाइट, जिस पे वाइट कलर का पेंट होगा वो ज़्यादा रेडिएट करेगा, बाहर हीट को रेडिएट करेगा, जिससे उसका टेम्परेचर जल्दी कम होगा. तो इससे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हम समर्स में क्यों वाइट या लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं. क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ्स जो हैं वो हीट को बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करते. और समर्स में विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर के जो क्लोथ्स हैं, जैसे कि ब्लैक कलर यहाँ पे शो हुआ है, ये ज़्यादा हीट को, मोर अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है. और विंटर्स में हमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है, सो वी फील कंफर्टेबल विद द डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर. लाइट कलर से क्या होता है, हीट बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है तो हमें गर्मी कम लगेगी. और विंटर्स में हम डार्क कलर पहनेंगे तो हीट वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो वी विल फील वार्म. लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम and therefore we feel more comfortable wearing them in the summers. Now next is the woolen clothes keep us warm in winter. We use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Wool heat का poor conductor है, heat को pass नहीं होने देता. Moreover there is a trapped air in between the woolen fibers. Woolen fibers के बीच में air trap होती है. So this prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings. So we feel warm. जब हम स्वेटर्स पहनते हैं जो वूल फाइबर से बनी हुई होती है और उसमें एयर ट्रैप होती है, तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो एयर हमारी बॉडी की हीट को अंदर ही रखती है, बाहर सराउंडिंग्स में नहीं जाने देती. इसलिए हम वार्म फील करते हैं, क्योंकि एयर एक बहुत अच्छा, एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को हमारी बॉडी से बाहर निकलने नहीं देती. अगर हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलेगी तो हमें ज़्यादा ठंड लगेगी. फिर सपोज़ यू आर गिवन अ चॉइस, अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आप एक मोटा ब्लैंकेट ओढ़ के सोएं या फिर 2 थिन ब्लैंकेट्स ओढ़ के सोएं, एक ब्लैंकेट के ऊपर दूसरा ब्लैंकेट लिया, तो किस में आपको कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा. योर आंसर शुड बी 2 थिन ब्लैंकेट्स. क्योंकि जो 2 थिन ब्लैंकेट है उनके बीच में एक एयर की एक लेयर बन जाएगी, और एयर जो है वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर पास नहीं होने देगी और वो ज़्यादा गर्म रखेगी. रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स के बीच में लेयर प्रेजेंट होगी. तो ये 2 पतले ब्लैंकेट्स एक मोटे ब्लैंकेट से ज़्यादा आपको वार्म रखेंगे, ये 2 पतले ब्लैंकेट, क्योंकि इनके बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. So if you like the video, please like it, share it with your friends and subscribe the channel, and please press the bell button so that whenever I upload the video you get the notification and you may watch the video. I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.